Yeah, we praise God for this morning, brothers and sisters. और भाइयों बहनों, इस सुबह के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Yeah, we just want to continue in the context of what we heard last week from Brother Gul and Brother Joby about the newness of life. और जो बातें हमने पिछले सप्ताह भाई जोबी से सुनी थी जीवन की नवीनता के विषय में, उसी को ही हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। That we don't have to go back to the old life where we are slaves to sin, but God has called us to live a new life where we can live as masters over sin. और कि यह हमें अपने पुराने जीवन में जाने की आवश्यकता नहीं, जहाँ पे हम पाप के गुलाम हुआ करते थे, परंतु हम जीवन की नवीनता में चल सकते हैं। And the very name Jesus, we have heard this so many times from our dear brother Zach. It means that he will save us, not just forgive us, but save us from our sins. और यह जो नाम है यीशु, जिसे हमने भाई जैक से अनेक बार सुना है, उसका अर्थ यह है कि वह हमें हमारे पापों से छुटकारा देगा। We pray that it will become real in all of our lives, that we know Jesus as our Savior, not just somebody who forgives us and takes us to heaven, but more than that, as our Savior. और हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति ना बने हमारे जीवन में जो हमारे पापों को क्षमा करके हमें स्वर्ग ले जाता है, परंतु हमारा उद्धार करता बने। Because he invested his blood to save us from our sin, not just to forgive us, but to save us. क्योंकि उसने अपने लहू का निवेश किया हमें बचाने के लिए, ना केवल हमें क्षमा करने के लिए। Just like a father would be sad after investing so much money for his son's education, but he takes it carelessly and messes up his education. ठीक वैसे ही जैसे एक पिता को शोक होता है जो अपने अपने बेटे के पढ़ाई में बहुत पैसा निवेश करता है, परंतु उसका बेटा उसे लापरवाही पूर्वक अपनी पढ़ाई को लेता है। So we need to clearly ask the Lord to open our eyes. और हमें स्पष्टता से परमेश्वर से इस बात को पूछना है कि वह हमारी आंखों को खोल दे। That receiving forgiveness from sins is completely different from being saved from sin. कि पापों की क्षमा प्राप्त करना वह पापों से पूर्ण रीति से उद्धार पाने से अलग है। If we are honest, probably many of us are satisfied with the way we are living, just receiving forgiveness whenever we fall, and I'm going to heaven after I die. We are just satisfied with that life. और हम में से बहुत सारे लोग केवल अपने पापों की क्षमा को लेकर के ही संतुष्ट हैं और यह मान करके चलते हैं कि मेरी मृत्यु के उपरांत मैं स्वर्ग जा रहा हूं और यही बात मेरे लिए पर्याप्त है। I don't want to be content. I believe that my Heavenly Father has much more in store for each one of us. और मुझे संतुष्ट रहने की आवश्यकता नहीं, परंतु क्योंकि मुझे पता है मेरे स्वर्गीय पिता के पास उसके भंडार में मेरे लिए बहुत सारी चीजें हैं। A life where we are not just conquerors, like it says on the screen, Romans 8:37, but more than conquerors, overwhelming victory through Him. We don't have to fight it ourselves, but through Jesus. और जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन में कि एक ऐसा जीवन जहां पे हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। An overwhelming victory through Him. और उसके द्वारा हम हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। And below us in 2 Corinthians, it says we should be thankful to God because He always, 24/7, always He wants to lead us in triumph. और उसके नीचे का जो वचन है वो पाया जाता है 2 कुरिन्थी 2:14 में, जहाँ पे लिखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। So that He can spread His aroma of His presence in every place, in the home, office, church, in the shop, everywhere. ताकि वह अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता रहे, अर्थात हमारे घर में, ऑफिस में, हमारे दुकान पे, हर जगह। We might think I am miserably defeated now. और हम सोच सकते हैं कि मैं तो बहुत ही बुरी रीति से पराजित हूं आज। But do you know to whom this wonderful promise is given? It is to the Corinthian church, which is one of the worst churches in the first century. परंतु क्या आप जानते हैं यह प्रतिज्ञा किन्हें दी गई है? यह प्रतिज्ञा उन लोगों को दी गई है जो पहली शताब्दी की सबसे खराब कलीसिया थी, अर्थात कुरिन्थियों की कलीसिया।
So we need to identify before, see, when we think of overcoming sin, victory over sin, first of all, it is God's promise. It is not our bright idea. और इसलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जब कभी हम पाप के ऊपर जयवंत होने के विषय में विचार करते हैं तो यह हमारा आइडिया नहीं परंतु परमेश्वर का विचार है। And we need to ask the Lord to show us the root of all sin, rather than looking at the fruit. और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हमें हर एक पाप की जड़ को दिखाए, क्योंकि हम तो केवल फल को ही देखते हैं। In the root of all sin, there are three things. और पाप के जड़ में तीन चीजें पाई जाती हैं। One is our lack of love for the Lord. और पहला है हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम में कमी। That is the root of all sin. If I don't overcome that, there is no use overcoming some sexual sinful habit or some anger, shouting in anger. और वही तो हर एक प्रकार के पापों का जड़ है, और यदि मैं इस पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो रहा हूं तो मुझे लैंगिक अभिलाषाओं के पाप एवं क्रोध के पाप के ऊपर जयवंत होने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। So that's the first thing, overcoming cold love for the Lord. और सबसे पहली बात यही है कि परमेश्वर के प्रति जो प्रेम ठंडा पड़ गया है उसके ऊपर हमें जयवंत होना है। The second and third are pride and selfishness. और दूसरा और तीसरा है, दूसरे नंबर में आता है घमंड और तीसरे नंबर में है स्वार्थ। Sometimes we can ask victory over anger in our homes. Why do we ask it? और कई बार हम अपने घरों में क्रोध के ऊपर जय को मांगते हैं, और हम ऐसा क्यों मांगते हैं? Because we selfishly want to have peace of mind. We are not concerned about God's glory, but we want peace in our mind. क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्वार्थपूर्ण रीति से अपने मन में चैन और शांति की चाहत रखते हैं। हमारी चाहत परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं होती परंतु घर में शांति रहे इसकी होती है। So these three sins, if we overcome first the root, then the fruit that comes out can be overcome. और इसलिए यदि ये तीन पाप के ऊपर हम पहले जयवंत होंगे तो इससे जो फल निकलता है उस पर भी हम जयवंत हो पाएंगे। Like there's a beautiful verse, we read it as it is on the screen, 1 Samuel 17:51. It says, David ran and stood over the Philistine, that is Goliath. और एक बहुत ही खूबसूरत वचन है जो पहला सामुएल 17 के 51 में पाया जाता है कि दाऊद दौड़ करके उस फिलिस्तीन के ऊपर खड़ा हो गया। Just think of that, brothers. That is our birthright, that we should stand over sin. Sin should be under. और इसी बात को सोचिए भाइयों कि यह तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि पाप जो है वो हमारे पैरों के नीचे रहे। And this is our birthright, like it beautifully says in Joshua 10:24. We need to put our feet on the sin. Right now, it may be that sin may be ruling us, but when we come under grace, we will put our feet on the sin. और बहुत ही खूबसूरती से जैसे लिखा गया हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के विषय में यहोशू 10 के 24 में कि हमें पाप के गर्दन पे अपने पांव को रखना है। हो सकता है कि अभी पाप हमारे ऊपर प्रभुता कर रहा है परंतु हमें उसके ऊपर प्रभुता करना है। And it so beautifully says, when David killed the champion, Goliath, it says the Philistines fled. और उसके बाद इतनी खूबसूरती से आगे बताए कि जब दाऊद ने गोलियत अर्थात चैंपियन को हरा दिया तो जितने फिलिस्ती थे वे सब वहां से भाग गए। Yeah, the Goliath sin, the champion sin, the root of all sin in our life is those three things which we just discussed. जो गोलायत या चैंपियन जो है पाप का, ये हमारे जीवन में ये तीन चीजें हैं जिनके विषय में अभी हमने विचार किया। If we kill that champion sin by the grace of God, और यदि हम इस चैंपियन पाप को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मार गिराएंगे, and we will see God giving us victory over other sins that come outside, that is anger, sexual sinful habits, bitterness, love of money, name it. और उसके बाद हम पाएंगे कि परमेश्वर हमारे बाकी बाहरी पापों के ऊपर भी जयवंत करेगा जो इसके परिणाम स्वरूप निकलते हैं, जैसे कि क्रोध, लैंगिक अभिलाषा, कड़वाहट, अनैतिकता इत्यादि। May the Lord help us, brothers and sisters. Remember, God used a weak David. He was not strong. He was a weak David to overcome a giant Goliath. और परमेश्वर हमारी सहायता करे, जैसे परमेश्वर ने एक कमजोर दाऊद को इस्तेमाल किया था। वह कोई मजबूत या बलशाली नहीं था परंतु वह निर्बल सा एक व्यक्ति था।
And let us not focus directly on anger and sexual sins and getting offended. Let us not focus on those outward sins. Rather focus on the inward sins, the root, the Goliath in our inner life. और हमें जो बाहरी पाप है अर्थात क्रोध या लैंगिक अभिलाषा या बुरा मान के रूठ जाना, इन चीजों के ऊपर जोर देने के बजाय हमें जो उसकी जड़ है, जो गोलायत के समान जो जड़ है, उसके ऊपर हमें ध्यान लगाना है। When the champion is dead, the other enemies will flee. यदि वह चैंपियन जो विजेता पाप है, यदि वह पराजित हो गया तो बाकी सब अपने आप भाग जाएंगे। That's why, brothers and sisters, we need to know that whom does the Lord save? और इसीलिए भाइयों और बहनों, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर किसे बचाता है। God's word is so clear that He wants all to be saved, not one to be lost. All of them, all of us to be saved. और परमेश्वर का वचन इतना स्पष्ट है और उसकी चाहत है कि हर व्यक्ति उद्धार पाए। यह नहीं कि कुछ व्यक्ति, परंतु हर व्यक्ति उद्धार को पाए। But God's word also says on the other side, those who are broken, those who are crushed and humble, only they will be saved. The Lord will save only them. और दूसरी ओर परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि केवल वे लोग जो टूटे हुए या पीसे हुए हैं, वे ही उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। Those who are humble. वे लोग जो नम्र हैं। And like it's we read that there on the screen, 2 Samuel 22:28. It says very powerfully that the Lord's eyes are on the haughty, the proud and arrogant, that He will bring them down. और जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2 सामुएल 22 का 28 वचन, और दीन लोगों को तो परमेश्वर बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। Isn't that true, brothers and sisters? Maybe initially in our when we become a Christian or when you come new to the church, you're so on fire for the Lord. और क्या यह बात सत्य नहीं है, जब हम एक मसीही बनते हैं तो हम मसीह के लिए कितने ज्यादा अग्नि से जलते रहते हैं। But now we are down, we have descended, we have become so low. परंतु अब हम इतने नीचे हो गए हैं और हम अपने आप को इतना नीचा महसूस करते हैं। Perhaps we have lost that brokenness. We have become haughty. It says the Lord's eyes are on such proud people to bring them down. और हो सकता है कि हमने उस नम्रता के स्वभाव को खो दे, जैसे यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की आंखें अभिमानियों पर लगे रहती कि उन्हें नीचा करें। God wants all men to be saved, which means He wants all of us to be broken. Without brokenness, the Lord cannot lead us to a victorious, overcoming life. परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। उसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति टूटा हुआ सा रहे, उसके बिना कोई उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकता है। That is one of the main reasons, brothers, that there is lack of brokenness. That's why the victory and overcoming life in our life is also delayed. और यही तो कि टूटेपन की कमी है, यही मुख्य कारण है जिसके वजह से जीवंत जीवन हमारे जीवनों में विलंब से आता है। You remember there was one miracle that Jesus repeated twice, first at the beginning of His ministry and one at the end before He went to heaven. और एक ऐसा आश्चर्य कर्म है जिसे यीशु मसीह ने 2 बार दोहराया, एक अपनी सेवकाई के आरंभ में और दूसरा तब जब वह स्वर्ग पे उठाया जाने वाला था, ठीक उसके पहले। That is when the disciples initially in Luke chapter 5 verse 5, they were trying and trying and trying the whole night. They got nothing, not even a single fish. और यह पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 5वें वचन में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि चेलों ने सारी रात मेहनत की और मेहनत की और मेहनत करती रही, तो भी उन्होंने कुछ भी मछली ना पकड़ी। Like you see in that picture, we sit there discouraged, can't even share with others what we are going through. और इससे हम उस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे वो निराश होकर के वहां पे बैठा हुआ और किसी से इस बात की चर्चा भी नहीं कर पाते कि किन चीजों से हम होकर के गुजर रहे हैं। Maybe a husband and wife fighting over the night. और हो सकता है कि पति और पत्नी रात भर झगड़ते हैं। Maybe a young person falling into sexual sin in the night. और हो सकता है कि यह एक जवान व्यक्ति रात्रि के समय में लैंगिक पाप में गिरता है। You don't want to sin, but you keep on falling. और आप पाप करना चाहते तो नहीं है, परंतु आप बार-बार गिर जाते हैं। But it says Luke 5:6, the Lord miraculously gave them a huge catch of fish. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें एक आश्चर्यजनक रीति से बहुत मछलियों को पकड़ने का सौभाग्य दिया। Net was so full.
और जो जाल था वो इतना भर गया। And you know what it says? It says the nets started to tear. और उसके बाद आपको पता है क्या लिखा, वहां पे लिखा है कि उनके जाल फटने लगे। And we all know what happens when a net tears, all the fish gets escaped. It leaks out. Everything, whatever the Lord gave, everything gets leaked out. और हम जानते हैं कि जब जाल फटने लगता है तो जो भी उसके अंदर पकड़ा गया है वह सब उसमें से धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, लीक हो जाता है। Same way, without brokenness, if we get victory over sin, my dear brothers and sisters, we will immediately, our head becomes so big, we will think high thoughts about ourselves, and the net begins to tear. उसी रीति से यदि बिना टूटेपन के यदि हमें पापों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है तो हमारा जो दिमाग है वो सूज जाता है, और उसी प्रकार होता है जैसे यह जाल फट जाता है और धीरे धीरे सारी बातें बह जाती हैं। All the victory, all the godliness, and whatever God has given, everything leaks out through that hole, that small hole of pride. और जितनी भी भक्तिमय बातें या जितना भी विजय परमेश्वर हमें देता है, यह सारी बातें उस घमंड के छोटे से छेद से बाहर बह जाती हैं। When we are proud brothers and sisters, we cannot contain the victorious life of Jesus. और जब हम घमंडी होते हैं भाइयों और बहनों, तो हम यीशु मसीह के जयवंत जीवन को अपने अंदर नहीं रख पाते हैं। When we go to a shop to buy 10 kilos of rice, और जब हम एक दुकान जाते हैं 10 किलो चावल लेने के लिए, and how many of us will take a thin plastic bag to carry that? It will get torn and all the rice will leak out. तो हम में से कितने लोग होंगे जो एक बहुत ही पतला सा प्लास्टिक का बैग लेकर के जाएंगे 10 किलो चावल को लेने के लिए, वह तो फट जाएगा और पूरा चावल बर्बाद हो जाएगा। That is why, brothers and sisters, the Lord takes time to give victory, overcoming life to us, because He wants to come to a place of brokenness. और इसीलिए परमेश्वर हमें जयवंत जीवन में लाने के लिए हमें बहुत समय लगाता है, क्योंकि वह हमें एक टूटेपन में पहले लाना चाहता है। The same miracle the Lord repeated after He's resurrected. और यही जो आश्चर्य कर्म है, इसे परमेश्वर ने दोहराया था अपने पुनरुत्थान के बाद। That's in John 21. और यह पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में। By this time, Peter is a broken man, and other disciples also. और इस समय जो पतरस था वह एक टूटा हुआ मनुष्य बन चुका था, और बाकी शिष्य भी वैसे ही। He denied Jesus 3 times. और उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। The disciples fled in the garden. और जो शिष्य थे वो उस गतसमनी के बाग से उसे छोड़कर भाग गए। And again, you see read similar words in John 21:3. They went out and they got nothing. That night they caught nothing. और उसी बात को हम फिर से यूहन्ना 21:3 में पढ़ते हैं कि उस रात वे गए परंतु उन्होंने कुछ भी मछली को ना पकड़ा। Lord wants us to, like we see in the picture, He wants us to come to a place where we are at the end of the rope. We have nobody else to help, nothing to boast. We are totally fed up with ourselves. और जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं, परमेश्वर की चाहत यह है कि हम ऐसे जगह पे पहुंचे जहां पे हम रस्सी के अंतिम छोर में पहुंच गए, हम पूरे रीति से अपने आप से ऊब चुके हैं। And so beautiful it says at the bottom left hand side, when the morning had now come, Jesus stood on the shore, but the disciples did not know that it was Jesus. और इतने खूबसूरती से चौथे वचन में लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उसे नहीं पहचाना कि यह यीशु है। Brothers and sisters, you may have fallen in anger or sexual sin or whatever sin it may be in the night, and morning you may be feeling so miserable. और भाइयों बहनों, रात को आप किसी भी प्रकार के पाप में या सेक्सुअल पाप में आप गिरे होंगे और आपको सुबह बहुत खराब और खेदित लग रहा होगा। You may have fallen in anger, quarreling and fighting. और जब हम क्रोध में, झगड़े में, लड़ाई में गिरते हैं, In morning you get up and feel so miserable. और सुबह उठ करके आपको इतना खराब महसूस होता है। But brothers and sisters, Jesus is standing right there, but we can't see Him. और क्या आप जानते भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ठीक वहीं पर खड़ा रहता है, परंतु हम उसे नहीं देख पाते हैं। Because our eyes are blinded with unbelief and discouragement. क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो अविश्वास के और निराशा के द्वारा अंधी कर दी जाती हैं। The Lord again gives them a miraculous catch of fish. और उसके बाद परमेश्वर फिर से उन्हें आश्चर्यजनक रीति से मछली पकड़ने का सौभाग्य देता है।
And it says it was a great number of fish. The net was full of fish. और वहां पे लिखा है कि यह बहुत बड़ी मछलियों को उन्होंने पकड़ ले, यहाँ तक कि जो उनके जाल थे वो मछलियों से पूरी रीति से भर गए। And so beautifully it says, John 21:11, this time the net was not torn. It was able to contain it. और इतनी खूबसूरती से 11वें वचन में लिखा है यूहन्ना 21:11 में कि इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। Praise God, brothers and sisters. That is where God wants us to come to. और परमेश्वर का धन्यवाद हो भाइयों और बहनों, यही वह स्थान है जहां परमेश्वर चाहत रखता है कि हम पहुंचे। That we are full of the Holy Spirit, like the net was full of fish. कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहे, ठीक वैसे ही जैसे जाल मछलियों से परिपूर्ण था। Full of joy. और आनंद से परिपूर्ण रहे। Full of peace. शांति से परिपूर्ण रहे। Full of godliness in our family. और हमारे परिवार में भक्तिमय से परिपूर्ण रहे। Full of humility. नम्रता से परिपूर्ण रहे। Still the net doesn't tear, because now we ourselves have fallen so deeply we cannot despise others. The net doesn't tear. और उसके बावजूद भी जाल नहीं फटा, इसलिए क्योंकि हम स्वयं इतने नीचे तक गिरे हैं कि हम किसी और को तुच्छ नहीं जान सकते हैं। Brothers and sisters, only the broken ones can contain the victorious life. भाइयों और बहनों, केवल टूटे हुए पात्र हैं वे ही विजयी जीवन को अपने अंदर रख सकते हैं। And the purpose why the Lord gives us victory is not to show off to others. और परमेश्वर हमें विजय जो देता है उसका उद्देश्य यह नहीं है कि हम दूसरों के सामने दिखावा करें। The reason God helps us to bring up our children in godly ways, not to show off to others. और कारण यह है कि परमेश्वर हमें अपने बच्चों को भक्ति में रीति में बड़ा करने के जो हमें सहायता करता है वह दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। First, the purpose is for His glory. He says, "Come and have breakfast." The Lord is longing to fellowship with us, even though we may have fallen so deeply. The Lord says, I long to have breakfast with you. I want to fellowship with you. और सबसे पहली बात वह उसकी महिमा के लिए होती है, जैसे वो यूहन्ना 12:21 में कहा कि आओ हम एक साथ मिलकर के नाश्ता करें। वो हमारे साथ संगति करने की चाहत रखता है। With the victory over sin, the overcoming life, it doesn't lead us to fellowship with the Lord. It's a fake victory. यदि पापों के ऊपर जो हमारा जयवंत होना है वह हमें परमेश्वर के साथ संगति में लेकर के नहीं जाता है, तो जो हमारी विजय है वो नकली विजय है। And the second purpose, important purpose of victory over sin is that we might encourage, feed others, those who are discouraged. और जो दूसरा उद्देश्य है इस जयवंत जीवन का वह यह है, और यह मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने भाइयों और बहनों को भोजन खिलाएं। We didn't have to preach, just feed them, to have a heart of a father and mother. हमें उन्हें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें उन्हें एक माता और पिता के समान हृदय रख करके उन्हें भोजन खिलाने की आवश्यकता है। We thank God for our dear brother Zach, who's been like a spiritual father to us, who's been feeding us so faithfully. और हम भाई जैक का धन्यवाद करते हैं जो हम सब के लिए एक आत्मिक पिता के समान रहे हैं और इतनी विश्वास योग्यता से हमें भोजन खिलाया है। And right now, आत्मिक तौर पे so right now we need not be discouraged. Our condition may be that there may be so many areas we are falling. और अभी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी आज की परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि हमारे जीवन में अनेक क्षेत्र हैं जहां पे हम गिर रहे हैं। God's promise is still true. Sin cannot rule over us if we come under His grace. और परमेश्वर की प्रतिज्ञा अभी भी सत्य है, और वह यह है कि पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता यदि हम अनुग्रह की अधीनता में रहते हैं तो। Paul tells the Corinthian Christians, we don't have to be like Moses who veiled his face. He didn't want others to see the glory which was fading away. और पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि हमें मूसा के समान बनने की आवश्यकता नहीं, जिसने अपने चेहरे पे पर्दा डाल दिया था ताकि लोग उस घटते हुए महिमा को, घटते हुए तेज के ना देख सकें। Initially it was shining, Moses' face, but slowly it started fading away. और शुरुआती समय में मूसा का जो चेहरा था वो चमकता रहता था, परंतु धीरे धीरे वह जो चमक थी वो वहां से चली जाती थी। Brothers and sisters, are we putting a veil before the Lord or others? और भाइयों बहनों, क्या हम दूसरों और एवं परमेश्वर के सामने अपने चेहरे पे एक कपड़ा ढाक लेते हैं? Hiding. We don't want others to see the rude way we speak to our wives at home.
और हम नहीं चाहते, हम छुपाते हैं, हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग देखें कि किस कड़वी रीति से मैंने अपनी पत्नी के साथ घर में बातचीत किया है। Our rebellion against the husband and being so hard and unmerciful to our children. और पति के प्रति विद्रोह और कितने कठोरता से हमने बच्चों के साथ व्यवहार किया है। The thoughts and the money matters and the time we spend in the phone and the internet. Maybe are we hiding? Are we putting a veil? Paul says there is no need. और जिस रीति से हम समय को, पैसे को व्यर्थ खर्च करते हैं और जिस रीति से हम समय को व्यतीत करते हैं इंटरनेट और सारे सोशल मीडिया के ऊपर, तो क्या हम उस तरीके से हम अपने चेहरे के ऊपर एक पर्दा डाल रहे हैं ताकि दूसरे ना देख पाए? Also beautifully says in 2 Corinthians chapter 3 verses 16 to 18, let us turn to the Lord so that the veil can be taken away. We don't have to hide anything before the Lord. और पौलुस बहुत ही खूबसूरती से 2 कुरिन्थी 3 अध्याय के 16वें पद में कहता है कि आओ हम यहोवा परमेश्वर की ओर फिरे, तब यह जो पर्दा है वह हमसे उठ जाएगा और हमें कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं होगी। And when we behold in the mirror, which is God's word, the glory of the Lord, the Holy Spirit transforms us into the image of Jesus. और उसके बाद जब हम अपने आप को दर्पण में देखेंगे तो परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, हमें उस तेजस्वी रूप में बदलता चला जाएगा। And in the very next verse in chapter 4 verse 1, like you see on the screen, it says, therefore, since we have this ministry, we do not lose heart. और ठीक अगले ही वचन में, 4 अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें यह सेवा मिली तो हम याव नहीं छोड़ते। What ministry? Ministry means we think of preaching and missionary work. और कौन सी सेवकाई? जब भी सेवकाई की बात हमारे दिमाग में आती है तो हम सोचते हैं प्रचार करना या मिशनरी के कार्य में जाना। Here it says we all have this, every one of us, even those who don't speak the word of God in our church, we all have this ministry. What is that ministry? To be transformed into the image of Jesus. और यहाँ पे जो हम में से हर एक को सेवकाई मिली है, और वह सेवकाई क्या है? उन लोगों को भी यह सेवकाई मिली जो कलीसिया में वचन का प्रचार नहीं करते। सेवकाई यह है कि उसके स्वरूप में बदलते चले जाना। Let us seek for this ministry. और हमें इसी सेवकाई की खोज करना है। Of becoming like Jesus. Holy Spirit is longing to change us. यीशु मसीह के समान बनने की लालसा कर रहा है और पवित्र आत्मा हमें बदलने के लिए आतुर है। So that we don't have to hide anything. If suddenly somebody comes at the door, I don't have to suddenly change the way I speak to my wife. और ताकि मुझे कोई चीज छुपाने की आवश्यकता ना पड़े। यदि कोई मेरे घर में अचानक से दस्तक दे तो मुझे अपने पत्नी के साथ व्यवहार में बदलाव करने की आवश्यकता ना पड़े। Yeah, there's a wonderful example in the Old Testament, a man called Caleb. और पुराने नियम में एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक व्यक्ति का जिसका नाम था कालेब। I personally believe he may have come from a Kenizzite background, maybe an unbeliever, but he had more faith than the other so-called the children of God, the Jewish people. और यह जो था वो केनेजाइट पृष्ठभूमि से आता था, वंशावली से आता था, और इसका जो विश्वास था यह परमेश्वर के जो संतान कहलाते थे उनसे बढ़कर इसका विश्वास था। The Lord gave a testimony. Lord himself gave a testimony that Caleb is a wholehearted man. और स्वयं परमेश्वर ने कालेब के विषय में यह गवाही दी कि यह पूरे हृदय से परमेश्वर का अनुसरण करने वाला व्यक्ति है। These are the two things Caleb said. First he said, brothers and sisters, we will surely overcome. और दो बातें हैं जिन्हें कालेब ने कहा था। पहली बात यह थी कि भाइयों और बहनों, हम निश्चय जयवंत होंगे। Let us not rebel against the Lord. और हमें परमेश्वर के विरोध में विद्रोह नहीं करना है। All the people who are saying these are giants, we cannot overcome. और सारे लोग जो कह रहे हैं कि यह जो दानव है हम इनके ऊपर नहीं जयवंत हो सकते हैं। But you know what unbelief here is called? It's called rebellion against God. और आपको पता है यहाँ पे अविश्वास को क्या कहा गया है? यहाँ पे अविश्वास को परमेश्वर के प्रति विद्रोह कहा गया है। He says we will surely overcome because God promised, let it be done so. और वो कहता है कि हम निश्चय जयवंत होंगे इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है, तो ऐसा होगा। In Joshua 14, when you're free, please read that wonderful chapter. He says, I don't want a valley, a deep, low valley, a low standard life. I want a high standard life. Give me this mountain, Joshua, because the Lord spoke on that day. I want the mountain, not a valley. और यहोशू की पुस्तक उसका 14वां अध्याय बहुत ही खूबसूरत अध्याय है। आप इसे घर जाकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कालेब यहोशू से कहता है कि मुझे तराई या घाटी जो एक
एक निचला जीवन है वह नहीं चाहिए, परंतु मुझे ऊंचाई का जीवन अर्थात मुझे पहाड़ चाहिए, इसलिए तू मुझे पहाड़ दे। You know, when Moses asked the leaders, 12 leaders, to bring the fruit from land of Canaan, और जब मूसा ने 12 अगुओं से कहा था कि कनान के देश से फल लेकर के आना, it says in Numbers 13:23, like we see on the screen, only 2 people had the faith to bring back the fruit. तो जैसे गिनती की पुस्तक 13 अध्याय के 23 वचन में लिखा है, केवल 2 ही लोग थे जिनके पास यह विश्वास था कि कनान देश से फल को ला सकें। We don't know their names, but I personally believe perhaps it is Caleb and Joshua. और हम उनके नाम को नहीं जानते हैं, परंतु मैं व्यक्तिगत तौर पर यह विश्वास करता हूं कि ये जो 2 लोग थे ये यहोशू और कालेब ही रहे होंगे। I'm sure they would have had glorious fellowship on the way back. और मुझे लगता है कि ये लौटते हुए इन्होंने बहुत ही महिमा में संगति भी आपस में की होगी। And what is the proof that the Lord is pleased with us? और यह क्या प्रमाण है जिससे हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? Not increase in salary or a big house or buying a new vehicle or a house. और तनख्वाह बढ़ने से नहीं, या नई अच्छे घर या अच्छी गाड़ी खरीदने से नहीं, Not even doing something in the church. या कलीसिया में कुछ करने से भी नहीं वो प्रसन्न होता है। Only one proof: if the Lord is pleased with us, He will bring us to that land. Now, for the new covenant, it is the life of Jesus. और एक ही प्रमाण है, यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो हमें वह उस भूमि तक लेकर के आएगा, और आज नई वाचा में वह जीवन है, यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले जीवन में वो हमें लेकर आएगा। The Old Testament, it was the land flowing with milk and honey. Now it is the life of Jesus overflowing with love and humility. पुराने नियम में यह एक ऐसे देश के विषय में था जो जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती थी, परंतु नई वाचा में यह एक ऐसा जीवन है जहाँ पे यीशु मसीह का अनुसरण करना है प्रेम और नम्रता के साथ। And God is pleased only with the broken people. I believe Caleb and Joshua perhaps were broken people. और परमेश्वर केवल टूटे मन के लोगों के साथ ही प्रसन्न होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि दोनों यहोशू और जो कालेब थे वे टूटे हुए हृदय के लोग थे। So when Caleb spoke those wonderful words of encouragement, you know what the people did? They wanted to stone Caleb and Joshua. और आपको पता है जब कालेब ने इतने प्रोत्साहन के शब्द कहे तो लोगों ने कालेब के संग क्या करना चाहा? उन्होंने यहोशू और कालेब दोनों के ऊपर पथराव करने को चाहा। The same way now we are not surprised why many people want to stone people like godly people like Brother Zach. You know, when they preach victory over sin, they say this heresy. और इसलिए अब हमें आश्चर्य नहीं होता कि क्यों बहुत सारे लोग एक भक्ति में व्यक्ति भाई जैक पूनन जैसे के ऊपर पथराव करना चाहते हैं, और यह कहते हुए पथराव करते हैं कि यह जो प्रचार कर रहा है वह भ्रामक प्रचार है। Brothers and sisters, do you want to stand with the majority where there's no God, or do you want to stand with the minority where God is there? और भाइयों बहनों, क्या आप उस बड़े समूह के साथ खड़े होना चाहते हैं जिनके मध्य में परमेश्वर नहीं है, या आप उस छोटे से झुंड के लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिनके मध्य में परमेश्वर वास करता है? There was a small church there. और वहां पे एक छोटी सी कलीसिया थी। Only 2 people, only 2 members. In the middle, God was there. और वहां पे केवल 2 ही लोग थे उस कलीसिया में, परंतु उनके बीच में परमेश्वर था। Caleb and Joshua, and God in the midst. कालेब और यहोशू थे और दोनों के बीच में परमेश्वर था। That if God was with these 2 humble people, that's a majority in God's eyes. और यदि परमेश्वर इन 2 नम्र लोगों के साथ था तो यह परमेश्वर की दृष्टि में यह एक बड़े समूह के समान थे। The choice is ours. The Lord will not force us. और जो चुनाव है वो हमारा है, परमेश्वर हमें विवश नहीं करता है With whom we want to stand. कि हम किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। You know, in Revelation 21, so beautifully it talks about 2 clear signs of the bride of Christ, the church. और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में मसीह की जो दुल्हन है उसके 2 विशेषताओं के विषय में वो कहता है बड़ी स्पष्टता से। The first mark of the true church. The church means all of us who are attending here. और जो पहला जो चिन्ह है सच्ची कलीसिया का, सच्ची कलीसिया का अर्थ है हम सब लोग। उसका क्या चिन्ह है? Not a building. वह कोई इमारत नहीं है। The first sign is that it was built, the New Jerusalem was built in the shape of a cube, like it says in Revelation 21:16.
और जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 16 वचन में लिखा है कि जो नया यरूशलेम था वो एक क्यूब की तरह बनाया गया था जिसका हर कोना बराबर होता है। The length, width, height is absolutely the same, equal. और उसका जो लंबाई है, चौड़ाई है और जो गहराई है वो सब की सब एकदम बराबर होती है। This is the passion in my life. I'm not speaking as one who has arrived. I want to come here saying, Lord, at home, office, thoughts, secret life, public life, everywhere, wherever people see me, I want to be the same person. और यही तो मेरे जीवन की लालसा और उमंग है। यद्यपि मैं वहां पे नहीं पहुंचा हूं, परंतु प्रभु जी चाहे लोग मुझे जहां भी देखें, चाहे घर में देखें, सड़क पे देखें, घर पे देखें, बाहर देखें, ऑफिस में देखें, मैं एक समान ही रहना चाहता हूं। Not like those, like you see on the right hand side, like the huge advertisement board, looks so humongous in the front, but when you see it from the top, it looks like a thin line. और जैसे आप दाहिने ओर के चित्र में देख सकते हो जहां पे बड़ा विज्ञापन का चित्र लगता है, जो सामने से तो बहुत बड़ा सा और व्यापक सा दिखता है, परंतु जैसे आप उसे ऊपर से देखोगे तो वो बहुत ही पतला सा होता है। Are we like that, brothers and sisters? क्या हम इस प्रकार से हैं भाइयों और बहनों? There is no need to get discouraged. Like we read in 2 Corinthians 4:1, let us not lose heart. God has given us a ministry of becoming like Jesus by the Holy Spirit. और जैसा हमने दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ा, भाइयों बहनों, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें यह सेवकाई दी है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में परिवर्तित हो जाएं। Where I live this victorious life all the time, anywhere people meet me, I'm the same person. और जब मैं इस विजय के जीवन को जीता हूं, तो जहां कहीं लोग मुझे देखेंगे तो वह उसी प्रकार के उसी व्यक्ति को देख पाएंगे। The second thing about this, the church, the true children of God, like you read in the second point there, is it's like a transparent glass, not like a frosted glass, nothing hidden, anybody can see through. और दूसरी बात जो इस कलीसिया के विषय में लिखी है कि उसका क्या विशेषता होगी, वह है कि वह एक ट्रांसपेरेंट कांच के समान होगा, मतलब पारदर्शी कांच के समान होगा। No need to hide the way we live at home or the way we work in the office or dealings with money or anything, our thought life, everything is transparent before the Lord. और किसी बात को छुपाने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस रीति से हम घर में व्यवहार करते हैं, दफ्तर में व्यवहार करते हैं, बाहर कलीसिया में व्यवहार करते हैं, या हमारे विचारों की में सारी बातें परमेश्वर के सामने पारदर्शी रहेंगी। I believe the Lord will bring me there. I want to confess my hope. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे उस जगह में पहुंचाएगा और मैं अपने विश्वास का आज अंगीकार करना चाहूंगा। I am not preaching to any of you brothers and sisters. I am just sharing what the Lord has blessed me. This is the life I want to live, which God has promised in His Word. और मैं आपसे कुछ प्रचार नहीं कर रहा हूं भाइयों बहनों, परंतु मैं केवल उन बातों को साझा कर रहा हूं जिन्हें परमेश्वर ने मुझसे कही है, और मैं इस जीवन में प्रवेश करने की चाहत रखता हूं। You might all wonder, do I need any other help other than the Holy Spirit? और आप लोग ऐसे सोच सकते हैं कि क्या मुझे किसी और सहायक की आवश्यकता है पवित्र आत्मा के अलावा? Holy Spirit is sufficient. His grace is sufficient. पवित्र आत्मा पर्याप्त है, उसका अनुग्रह पर्याप्त है। Because many husbands can give excuses and put blame on the wife, saying, because the wife is not supporting, therefore I am not becoming godly. That is a lie. और बहुत सारे जो पति लोग हैं वो अपनी पत्नी के ऊपर इस रीति से दोष लगाकर कह सकते हैं कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी मेरा सहयोग नहीं कर रही है, मैं एक भक्ति में जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। यह एक झूठ है। Yeah, we all we need is the power of the Holy Spirit. और हमें जिन बात की आवश्यकता है वह है पवित्र आत्मा की सामर्थ की। I want to show two husbands who had so much of difficult wives, but they became such godly saints. और हम दो पतियों के विषय में देखेंगे जिनकी इतनी कठोर पत्नियां थी, परंतु उसके बावजूद भी वे बहुत बड़े भक्ति में ईश्वरीय व्यक्ति बने। One is John Wesley and the other one is William Carey. पहला है जॉन वेस्ली और दूसरा है विलियम केरी। You know, in the biographer, he says that John Wesley's wife, she had an acid tongue. और जिसने जॉन वेस्ली की आत्मकथा लिखी, वह लेखक कहता है कि जो जॉन वेस्ली की जो पत्नी थी, उसकी जो जुबान थी वो एसिड की बराबर थी।
Just think of that word. I've never heard that term anywhere in my life. और आप इस शब्द के विषय में सोचे, मैंने इस कथन को अपने जीवन में कहीं नहीं सुना है। Having an acid tongue that pours out words that deeply humiliate and hurt. और एसिड के समान जुबान होना, एक ऐसा जुबान जो जिससे ऐसे शब्द बाहर निकलते थे जो अंदर तक घाव पैदा कर देते थे। She would humiliate John Wesley in front of other church people. और वो जॉन वेस्ली को बाकी कलीसिया के लोगों के सामने नीचा दिखाती थी, Suspicious of him. और उसके ऊपर शक करती थी। In one meeting, she stormed into the meeting, pointing her finger at one sister and pairing her up with John Wesley. और एक सभा में वो अचानक से प्रकट हो जाती है और एक बहन की ओर उंगली दिखा करके कहती है कि ये और जॉन वेस्ली का कोई संबंध है। She would sometimes drag John Wesley, pulling his hair on the floor. और कई बार वो जॉन वेस्ली के बाल को पकड़ करके उसे जमीन पे गिरा देती थी। And she would secretly read the letters that other people used to write, sharing their problems to John Wesley. और वह चुपके से उन पत्रों को पढ़ा करती थी जिन्हें दूसरे लोग भाई जॉन वेस्ली को लिखा करते थे प्रार्थना के लिए। And she would change a little bit in that and go to the newspapers in London and ask them to publish it. I don't know whether they published it, but just think of a wife doing that. और उसके बाद वह उन पत्रों में कुछ चीजों को इधर उधर फेरबदल कर देती थी और उसके बाद वहां के इंग्लैंड के न्यूज़पेपर वालों के पास जाकर के कहती थी कि इस खबर को आप छापो अपने पेपर में मेरे पति के विषय। मुझे नहीं पता ये बात सत्य है कि नहीं। John Wesley became one of the greatest saints in the history of the church, even though he had such difficult wife, terrible wife. और जो जॉन वेस्ली रहा वह मसीहियत की और कलीसिया के इतिहास में सबसे बड़ा संत होकर के उभरा, यद्यपि उसकी इतनी कठोर पत्नी थी। He was such a blessing that all the drunkards, many of the drunkards were repenting and turning to the Lord. और उसके द्वारा ऐसी आशीष बह रही थी कि इतने सारे जो पियक्कड़ लोग थे, जो शराबी लोग थे, वह उद्धार को प्राप्त करके परमेश्वर की ओर फिर रहे थे। The alcohol shopkeepers were so mad at John Wesley because they were losing their business. They had to close their bars. और जो शराब की दुकान वाले थे या जो बार वाले थे, वे जॉन वेस्ली के विरोध में बहुत पागल हो रहे थे, क्योंकि जॉन वेस्ली की वजह से उनका जो व्यवसाय था वो ठप हो रहा था। Queen of England also once called John Wesley to her palace and said, "We want to thank you so much, Mr. Wesley, that what our government could not do, you did." और एक बार वहां के जो राज परिवार था, उन्होंने जॉन वेस्ली को अपने महल में बुला करके कहा कि जो हम सरकार इस काम को नहीं कर पाई, उस कार्य को आपने कर दिया। The second is William Carey. और जो दूसरा व्यक्ति है वो विलियम केरी है। Now, he had a wife who never was supportive. She was always stubborn. और उसकी एक ऐसी पत्नी थी जो कभी भी सहयोग करने वाली नहीं थी, परंतु वो हमेशा ढिठाई करती रहती थी। Later, she became a mentally ill person. और उसके बाद वह एक मानसिक विभंग हो गई। I heard that sometimes he had to give bath because she was like a little baby. He had to give bath, and then he had to tie her on the cot because sometimes she would run away and scream like a mad person. और मैंने पढ़ा कि वो ऐसी मानसिक विभंग हो गई थी कि विलियम केरी को उसे स्नान कराना पड़ता था और उसके बाद उसे खटिया से बांध करके रखना पड़ता था, नहीं तो वो इधर उधर दौड़ती भागती चली जाती थी। With all this, he translated the Bible. Remember, he's not an Indian; he's a British man. He came to our country, learned our languages. I think he translated over in 40 different languages. और यही वह व्यक्ति था जिसने बाइबल का अनुवाद किया। इस बात को याद रखें, यह एक भारतीय व्यक्ति नहीं था, यह ब्रिटिश व्यक्ति था जो इंग्लैंड से भारत आया था और इसने 40 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया। He didn't sit back at home in bitterness and revenge-taking attitude. Oh, what to do? The wife is not supporting. No, they accomplished the purpose God had given them, and they became such godly saints. और वह व्यक्ति घर में कड़वाहट के साथ नहीं बैठा रहा कि मेरी पत्नी सहयोग नहीं कर रही है, परंतु वह नहीं, उसने परमेश्वर के अधीनता में आया और उन चीजों को हासिल करते हुए वह भक्ति में एक संत बन पाया। I'm going to share about 2 ordinary housewives who became such great saints, blessing the whole world.
और हम दो गृहिणियों के विषय में, साधारण सी गृहिणियों के विषय में देखेंगे जिनकी वजह से पूरा विश्व आशीषित हो पाया। One is Susanna Wesley, and the one is Madame Guyon. और पहली है सुसैना वेस्ली और दूसरी है मैडम गियोन। Now, Susanna Wesley had a very difficult husband. He never supported her. और जो सुजैना वेस्ली था, उसका जो पति था बहुत ही कठोर व्यक्ति था, उसने कभी उसका सहयोग नहीं किया। In fact, one biographer says her husband is something like a scoundrel. और एक जो आत्मकथा लिखने वाला है, वो कहता है कि उसका जो व्यक्ति था वो बहुत ही निष्ठुर व्यक्ति था, कठोर दिल का। But her motto was, Lord, I'm happy to fill a little space if you are glorified in it. और वो कहती थी कि मैं खुश रहूंगी एक छोटी सी जगह को भी भरने में, यदि उसमें तुझे महिमा मिले तो। And she always spoke respectfully to her husband. She never humiliated her husband, talking about his faults to others. और उसने हमेशा अपने पति से आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक बात किया। उसने कभी भी अपने पति की खामियों को दूसरों से चर्चा नहीं किया। And sisters, what a husband needs respect more than food, more than sexual pleasure. He needs respect. और बहनों, क्या आप जानती कि एक पति को सबसे ज्यादा सम्मान की आवश्यकता होती है, भोजन और एवं लैंगिक सुख से बढ़कर के उसे सम्मान की आवश्यकता होती है। She became such a great saint. और वह इतनी महान संत हुई। Even though she had a difficult husband, never supported her. और यद्यपि उसका एक ऐसा कठोर पति था जिसने कभी उसका सहयोग नहीं दिया। She had 10 children, all 10 of them, she brought them to the Lord single-handedly. और उसके 10 बच्चे थे और उन 10 बच्चों का उसने अकेले अपने आप से ही परवरिश किया। She didn't sit back in discouragement and bitterness. और वह निराशा में और कठोरता में, कड़वाहट में ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठी रही। Last one is Madame Guyon. She is another great saint from France. और जो दूसरी है वो मैडम गियोन है और यह फ्रांस देश से एक महान संत हुई। She had a difficult husband. और उनका एक कठिन कठोर पति था। A different mother-in-law. और उसकी सास भी बहुत कठोर थी। And in one occasion, I remember someone saying that the housemaid also wanted to take some revenge on Madame Guyon, some false accusation. और मुझे स्मरण आता है एक जगह पे, जहाँ पे मुझे स्मरण आता है कि जो घर की नौकरानी थी वह भी मैडम गियोन के ऊपर कुछ बदला निकालना चाहती थी। You know what the housemaid did? और आपको पता है उस घर की नौकरानी ने क्या किया? She walks up to the husband and tells some lies about Madame Guyon. और वह उसके पति के पास जाती है और मैडम गियोन के विषय में झूठी झूठी बातें बोलती है। Your wife is hurting me. और कहती कि आपकी पत्नी मुझे चोट पहुंचाती है। The husband, he was not at all a supportive husband. He goes to Madame Guyon and says, apologize to the maid. और वह जो पति था वो बिल्कुल भी सहयोग करने वाला पति नहीं था। वो सीधी तौर पे मैडम गियोन के पास जाकर के कहता है कि नौकरानी से तू माफी मांग। And what do you think Madame Guyon did? She did not rebel. और आपको क्या लगता है मैडम गियोन ने क्या किया होगा? उसने जरा भी विद्रोह नहीं किया। She apologized to the maid. और उसने उस नौकरानी से माफी मांगा। No, I'm not saying we should say foolishly when it is not needed. Foolishly say sorry, but sometimes God allows us to say sorry even though we have not done wrong. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें मूर्खता से हमें जाकर के किसी से माफी मांगना चाहिए, परंतु कई बार परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को आने की अनुमति देता है जहां पे हमें बिना गलती हुए भी माफी मांगना पड़ता है। By the way, this is a sister from Roman Catholic denomination. और मैं आपको बताना चाहूंगा यह एक ऐसी बहन थी जो रोमन कैथोलिक पृष्ठभूमि से आती थी। Perhaps some of us may despise. और हो सकता है कि हम में से कई लोग इन्हें तुच्छ जाने। I want to sit at the feet of these saints and learn. और मैं ऐसे संतों के चरणों में बैठ करके सीखना पसंद करूंगा। Who had no supporting husbands at all. जिनके पास जरा भी सहयोग करने वाले पति नहीं थे। Compared to these 4 saints, I am sure 100% every one of us have good wives and good husbands. और यदि हम इन 4 संतों से अपनी तुलना करें तो हम में से हर एक व्यक्ति यह पाएंगे कि जो हमारे पति और पत्नी है इनसे कहीं बेहतर है। There is only one reason I am not able to overcome my sin. I am not able to partake of God's nature. It's because of my laziness. It's nothing to do with others.
और केवल एक ही कारण है कि मैं पाप के ऊपर जीवंत नहीं हो पा रहा हूं और परमेश्वर के स्वभाव का सहभागी नहीं हो पा रहा हूं, इसका पूरा पूरा वास्तव मेरे आलसीपन से है। Like about Caleb, it says he had a different spirit. He had the same flesh like everybody else who rebelled against God, but it says he had a different spirit. और जैसे कालेब के विषय में कहा गया कि उसके अंदर एक विभिन्न प्रकार की आत्मा थी, उसके पास वही शरीर था जो बाकी विद्रोही लोगों के पास था, परंतु उसकी आत्मा भिन्न थी। May to have a different spirit, a spirit of brokenness. और हमारे पास भी एक ऐसी ही विभिन्न आत्मा हो, अर्थात एक टूटेपन की आत्मा। Stop giving excuses for the lack of godliness in us. और हमारे अंदर जो भक्ति की कमी है उसके लिए हमें बहाना बनाना अब छोड़ना है। The Lord is much more eager, brothers and sisters, for us to partake of this overcoming life, a life where we can have victory over sin and still be humble. और परमेश्वर हमसे ज्यादा इच्छुक है कि हम इस जीवन के सहभागी बने जहां पे हम पाप के ऊपर जीवंत हो सकते हैं और जो जीवंत के जीवन है उसमें हम सहभागी हो सकते He has हैं। come to save us, not just forgive us, but to save us from our sins. और वह ना केवल हमारे पापों को क्षमा करने आया परंतु हमें हमारे पापों से बचाने आया। Let us have a new beginning from today. It doesn't matter how we lived till last 1 hour or in the past, but from today we can have a new beginning. और आज से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, इससे कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं कि अभी तक हमने किस रीति से जीवन जिया, परंतु अब से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। May the Lord help us. Amen. परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन। Dear brothers and sisters, we've heard a clear word from heaven, how God wants us to come to a life of overcoming. प्रिय भाइयों बहनों, हमने स्वर्ग से एक स्पष्ट वाणी को सुना है कि किस रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम पाप के ऊपर जीवंत जीवन में आए। And God, even before any covenant, we talk about new covenant, we talk about old covenant. Even before any covenant was there, it was in God's heart that we would be overcomers. और इससे पहले कि कोई वाचा बांधी जाती, परमेश्वर के हृदय में यह लालसा थी कि हम जय प्राप्त करने वाले बने। The new covenant came when Jesus came. और नई वाचा तब आई जब यीशु मसीह आए। And he kind of revised the old covenant in Matthew 5, 6 and 7 on the Sermon on the Mount. और मत्ती 5, 6, 7 में पहाड़ी उपदेश में आकर के उसने जो पुराने नियम था उसको फिर से उसने रिवाइज किया। And the old covenant was when the law was given, the 10 commandments and the various law for the Israelites was given through Moses. और पुरानी वाचा तब थी जहां पे व्यवस्था का और अनेक प्रकार की आज्ञाओं का लोगों को मूसा के द्वारा दिया गया था। But we see right at the beginning when Adam and Eve were just alone, at that time itself God really wanted us that we would come to a life of overcoming. और ठीक उसी समय से आदम और हवा के समय से ही हम देखते हैं कि परमेश्वर की यह चाहत और लालसा रही थी कि हम एक जीवंत जीवन में प्रवेश कर सकें। Yeah, God's original intent without any law, what was his actual desire in the Garden of Eden when he made man, Adam and Eve, man. और अदन की वाटिका में जहां पे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, जहां पे उसने मनुष्य की सृष्टि की थी, उसका जो ओरिजिनल उद्देश्य था मनुष्य के प्रति वह क्या था? We read that in Genesis chapter 4. और इसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय में। We see there that when Cain was upset that his offering was not accepted. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जब केन उदास हो गया क्योंकि उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई थी। And
the Lord speaks to him in Genesis chapter 4 verse 6. और परमेश्वर उससे कहता है उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय में 6वां वचन. 6 वचन में Then the Lord said to तब Cain, यहोवा ने why are you angry and why is your countenance fallen? और यहाँ पे लिखा है तब यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है. Yeah, dear brothers and sisters, right there at the beginning of human race, God is asking a question to Cain when he is filled with jealousy. और भाइयों बहनों ठीक मानव जाति के आरंभ में ही परमेश्वर कैन से एक प्रश्न पूछ रहा है जब वह जलन से भरा हुआ है तो. Yeah, I also gave a gift. Mine was not accepted. My brother gave and it is accepted. और मैंने भेंट चढ़ाई वह ग्रहण नहीं की गई, मेरे भाई ने भेंट चढ़ाई वह भेंट ग्रहण कर ली गई. And he is full of anger and he we know at the end of the story he kills, but see how God is addressing that. और वह क्रोध से भर गया और हम इस कहानी के अंत को जानते कि कैसे उसने अपने भाई की हत्या की, परंतु आप देखिए कि परमेश्वर इसे कैसे संबोधित कर रहा है. Verse 6 it says your countenance has fallen. और 6वें वचन में वो कहता है कि तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है. Verse 7 says if you do well, will not your countenance be lifted up? और 7वें वचन में लिखा है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी. Yeah, that is open to each one of us. If we do well, God will lift us up. We don't need to be jealous about somebody who has done well and you were not up to that mark. और यह बात हम सबके लिए लिखी गई है कि यदि हम भला करें तो अभी तक नहीं परंतु इसके बाद भेंट जरूर ग्रहण की जाएगी. And then the Lord says in verse 7, the second part, if you do not do well. और उसके बाद 7 वचन के दूसरे भाग में परमेश्वर कहता है यदि तू भला ना करे. Sin is crouching at the door and its desire is for you, but तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी. But you must master it. परंतु तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है. Dear brothers and sisters, this was God's heart when first time a sin is going to happen, of murder is going to happen in the universe. प्रिय भाइयों बहनों यह परमेश्वर के हृदय की लालसा थी सबसे पहली बार जब एक पाप या एक हत्या इस संसार में होने जा रही थी. ठीक उसके पहले Yeah, you must master it. Sin is right there. Crouching means approaching, somehow trying to creep in at your door, right at your door of your heart. पाप दरवाजे के पास छुपा रहता है, वो किसी न किसी रीति से अंदर घुस करके तुझे दबोचने का प्रयास कर रहा है. But you must master it. He wanted each of us to be master over the sin which wants to put us down. परंतु तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है और उसकी लालसा चाहत यह है हम से हर एक के लिए कि हम किसी न किसी रीति से उस पाप के ऊपर प्रभुता करें. While I was thinking of this, I was thinking, do I really see sin as something which makes my countenance fall?
और जब मैं इसे देख रहा था तो मैं क्या पाप को इस रीति से देख रहा हूँ जिसके वजह से जो मेरी भेंट है वह गिर जाती है। Dear brothers and sisters, I was thinking of what Jesus said, that every sin actually makes me a slave of sin. I am not a master, I am a slave there in every sin that I do. और प्रिय भाइयों बहनों, मैं उस बात को स्मरण करना चाहूंगा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर एक पाप जो मैं करता हूं वह मुझे उस पाप का गुलाम बना देता है। I am not a master there, I am a slave. और वहां पे मैं एक स्वामी नहीं रहता हूं परंतु वहां पे मैं एक गुलाम बन जाता हूं। Yeah, every slave, living a life of a slave is not easy. It is pathetic. You are always under the pressure of the master, that is sin. और एक गुलाम का जीवन जीना आसान नहीं होता है, हमेशा वह स्वामी के दबाव में रहता है और इस परिस्थिति में स्वामी पाप है। And we know the verse which Jesus very clearly said in John 8, saying that John 8:34, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. और मैं उस वचन को कहना चाहूंगा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:34 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो पाप करता है वह पाप का दास है, गुलाम है। Yes, dear brothers and sisters, God wants to set us free from this slavery of sin, and that's His intention from ages past. At the beginning of human race itself, His desire was that. और हाँ प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें पाप से स्वतंत्र करना चाहता है और इस बात को हम देखते हैं कि मानव जाति के आरंभ से ही परमेश्वर की यह लालसा थी कि हमें पाप के ऊपर प्रभुता करवाए। And when God, at the beginning, when He says something that you must master it, dear brothers and sisters, it is our birthright and we should believe it that God will give us the help to overcome. और भाइयों बहनों, जब परमेश्वर किसी बात को इतने शुरुआत से ही कह रहा है तो हमें इस बात को मानना है कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और परमेश्वर ऐसा करने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करेगा। But unfortunately, when we go in the Christian life, it is not this way. परंतु दुखद बात यह है कि जब हम मसीही जीवन में जाते हैं तो इस रीति से हमारे साथ नहीं होता है। We basically try to do this by our own strength. तो हम इन चीजों को अपनी शक्ति से करने का प्रयास करते हैं। And it is good. To start with, it is good. और आरंभ करने के लिए यह चीजें अच्छी हैं। It gives us a learning in our life. और यह हमारे जीवन में हमें एक सीख प्रदान करती है। And we read that in Romans 6. और इस बात को हम रोमियो 6 में पढ़ते हैं। It talks about in chapter 6 verse 11. और रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 11वें वचन में वो कहता है, It says, even so, consider yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। Yeah, there are two verses which says about freed from sin. और 2 वचन हैं जो पाप की से स्वतंत्रता के विषय में बात करते हैं। One is in the same chapter we read here in Romans 6 verse 7. और पहला तो इसी अध्याय में पाया जाता है जो है रोमियो की पत्री 6 अध्याय 7 वचन। He who has died is freed from sin. क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। And second we read in 2 Peter. और दूसरा हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री में, Sorry, 1 Peter chapter 4. पत्रस की पहली पत्री और उसका 4था अध्याय verse 1, the last part. और पहले वचन का अंतिम भाग। It says,
He who has suffered in the flesh has ceased from sin. क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। Yeah, both are very similar. Both are talking about freedom from sin. और दोनों ही वचन बिल्कुल सामान्य है, दोनों ही वचनों में पाप से स्वतंत्रता के विषय में कहा जा रहा है। One, it says that if we die, we will be free from sin. और एक जगह में वो कहता है यदि हम मरेंगे तो हम पाप से स्वतंत्र हो जाएंगे। And the second, in First Peter 4, we read, if we have suffered in the flesh, we will cease from sin, or we'll be free from sin. पहला पत्रस 4 अध्याय के पहले वचन में जैसा हमने पढ़ा कि यदि हम शरीर में दुख उठाएंगे तो हम पाप से स्वतंत्र हो जाएंगे। Both these looks as if that I am going to do this. और दोनों ही वचन ऐसे हमें लगते हैं कि मैं इसे करने वाला हूं। Yes, there is a part of my intention, my desire that yes, I want to be free from sin, and I walk that way, and I want to put myself to death. There is a part which I need to play. और हाँ, मेरा एक हिस्सा है जो जिसे मुझे पूरा करना है कि मेरे अंदर एक लालसा है कि मैं पाप के ऊपर जीवंत होना चाहता हूँ, उस जीवंत जीवन में भागीदार होकर के उसमें चलना चाहता हूँ। And with that intention, I grit my teeth. I turn my eyes when there is a lustful poster on the road, or when some situation comes in my home, I somehow try to avoid it. All those, yes, I do by my own self. और यही लालसा रखते हुए जब मैं सड़क पे चलता हूं और कोई पोस्टर मेरे सामने दिखता है तो मैं अपनी आंखों को उसके प्रति बंद करता हूं, या घर में कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं। यह सारी चीजें मैं अपनी सामर्थ्य में करने का प्रयास करता हूं। Yes, we all start there, and we should start there. और हाँ, हम सब की यहीं से शुरुआत करते हैं और हम सबको यहीं से ही शुरुआत करना है। We try our best to preserve ourselves because God has done so much for us, and as a thanksgiving, we want to return to Him a thanksgiving. Lord, yes, I don't want to sin, Lord, and make you sad. I do my best to do all those. और हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और उन्हीं चीजों का आभार व्यक्त करते हुए मैं परमेश्वर को यह लौटाना चाहता हूं कि मैं अपना भरसक प्रयास करना चाहूंगा कि मैं इन चीजों में ना पड़ूं। And that's how we read the verse in verse 11 saying that consider yourself dead to sin. और इसी बात को तो हमने रोमी 6 के 11 में पढ़ा कि तुम अपने आप को पाप के लिए तो मरा समझो। Yeah, dead man, sin comes, it will not have any effect on me because I am alive to God in Christ Jesus. मरा हुआ व्यक्ति, और यदि मेरे पास एक पाप आएगा तो उसका मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं मसीह यीशु में अब जीवित हूं। Yeah, dear brothers, yeah, I try my best. When situation come, I want to be dead. If that is my intent, and when I move in that direction. और प्रिय भाइयों बहनों, जब एक परिस्थिति आती है तो मैं अपना भरसक प्रयास करता हूं, और यदि यह मेरे अंदर की लालसा है तो as we go this way, we find, as Paul says in the next chapter, in chapter 7, we come to a point where we say that in chapter 7. और यदि हम इसी रास्ते पे चलते रहेंगे तो हम एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जिसे पौलुस ठीक अगले अध्याय, मतलब 7वें अध्याय में कहता है। In verse 18 he says, और 18 वचन में वो कहता है, For I know, now I have realized that nothing good dwells in me.
और वो कहता है क्योंकि मैं अब जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। Yeah, that is in my flesh, for the willingness is present in me, but the doing of good is not. और भले काम करने की इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते हैं। Yeah, for the good that I want, I do not do. Verse 19, but I practice the very evil I do not want. और 19 वचन में कहता है क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। Yeah, there is a desire, but I see that my flesh is so corrupt, there is nothing good. It only pulls me down. और यह एक ऐसी लालसा है जहां पे मैं देखता हूं कि जो मेरा शरीर है वो इतना भ्रष्ट है, वो मुझे केवल नीचे और नीचे ही खींचता है। And then it brings to this place in verse 24, it says, wretched man that I am. और उसके बाद वो 24 वचन में कहता है कैसा अभागा मनुष्य मैं हूं। Who will set me from the body of this death which always pulls me down? और कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा, यह देह से छुड़ाएगा जो मुझे हर पल हर समय नीचे ही खींचते रहती है। Then it says about the Christ and the Spirit of Christ which will do the work which I could not do by my own. और उसके बाद वो मसीह एवं मसीह की आत्मा के विषय में कहता है जो उस कार्य को करेगा जिसे मैं करने में असमर्थ हूं। We read exactly that in verse 2 and 3 of chapter 8. और इसी बात को तो हम 8 अध्याय के दूसरे एवं तीसरे वचन में देखते हैं। The law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने जो मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। Verse 3, what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did. क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। Yes, and it says same in verse 6 and 7 also. और वह आगे 6 और 7वें वचन में भी कहता है इसी अध्याय के, mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Yeah, the Lord is desiring that to set our minds on the spirit, which is life and peace, a higher life which the Lord is calling us to. और परमेश्वर की लालसा है कि हमारे मनों को ऐसी ओर लगाए अर्थात उस ऊंची बुलाहट की ओर जहां पे हमारा ध्यान जीवन और शांति की ओर लगा रहे। And it says in verse 7 also that mind set on the flesh is hostile towards God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. और 7वें वचन में लिखा है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो वह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही ऐसा शरीर हो सकता है अधीन। Yeah, it is not even possible. The flesh cannot submit to God and God's ways. और यह तो संभव भी नहीं है क्योंकि यह जो शरीर है यह परमेश्वर के और परमेश्वर के मार्गों की अधीनता में नहीं आ सकता है। And then he continues on to say in verse 13. और आगे 13 वचन में कहता है, If you are living according to the flesh, you must die. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. यदि आत्मा से देह की
क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। And then it in verse 14 it says about kind of a definition of sons of God. और उसके बाद 14वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के संतानों की क्या परिभाषा दी गई है। All those who are led by the Spirit of God, these are the sons. We can replace as daughters of God. और यहाँ पे लिखा है क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, और यहाँ पे हम बेटियां भी रख करके पढ़ सकते हैं। Dear brothers and sisters, in practical terms, what does this mean? और प्रिय भाइयों बहनों, व्यवहारिक रीति से इस वचन का क्या मतलब है? It means in day-to-day situations, when the Spirit puts a word in our heart, a voice in our spirit, obey it. और इसका अर्थ यह है कि दिन प्रतिदिन की परिस्थिति में जब आत्मा हमारे हृदय में एक बात को डालता है, एक वचन को डालता है, तो आप उस बात का या उस वचन की आज्ञा का पालन करें। See, God's word is full of balance. और जो परमेश्वर का वचन है वह पूरी रीति से संतुलन से भरा हुआ है। God knew from day one that I need to bring this man who is always downward looking to make him upward looking and make him be a master. और परमेश्वर शुरुआती दिन से ही जान रहा था कि मुझे इस मनुष्य को जो हमेशा नीचा दिखने वाला है, इसे लाना है ताकि इसे मैं ऊपर दिखने वाला बना सकूं। And Spirit in us so that he can guide us, he can help us, he can give us the power to overcome. और उसकी आत्मा जो उसने हमारे अंदर दी है वह हमें सामर्थ्य दे सकती है, हमें अगुवाई कर सकती है ताकि हम इन सब चीजों के ऊपर जयवंत हो सकें। But he will never force us. परंतु वह कभी भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। He will not force us to turn our head away. He will not do that. He is a gentleman. He only whispers and says, turn to the left, turn to the right. That's it. और वह कभी भी हमारे साथ जबरदस्ती करके नहीं कहेगा कि अपने मुख को इस तरफ से फेर लो। वह एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति है। वो हमेशा धीरे से फुसफुसाते हुए कहेगा कि तुम दाहिनी ओर मुड़ो या बाईं ओर मुड़ो। And he creates in us a desire to resist sin once, which we did by our own strength. Today the Lord will, in our heart of heart, create a hatred towards those things which we are struggling or we struggled with, and it becomes much easier. और आज परमेश्वर हमारे हृदय की गहराइयों में ऐसी लालसा को उत्पन्न करेगा उन पाप से घृणा करने के लिए जिन्हें एक बार हम करने में आनंद महसूस किया करते थे। Yeah, once I looked at the poster, it was so difficult. I pulled myself out, but now God has done a work in my heart that I don't desire to look at it. That's not my passion. I don't need to look at those. और एक बार मैं एक पोस्टर को देखता था तो मेरे लिए उससे हटना, आंख फिर लेना बहुत कठिन होता था, लेकिन अब परमेश्वर ने जो काम किया है मेरे अंदर वह यह है कि मुझे अब उसे देखने की लालसा ही नहीं होती है। And the Lord can tell us right at that moment in our spirit, saying that this is sufficient. Don't fight over it or don't try to prove yourself. Just come out from that discussion. You don't need to go into that discussion. और परमेश्वर ठीक ऐसी परिस्थिति में हमसे कह सकता है कि तुम ऐसे विवाद में ना पड़ो, परंतु वहां से बाहर निकल के आ जाओ। And only thing that we need to do is a kind of a submissive, a responsive action to what the Spirit is telling us. और केवल एक ही बात जो हमें करना है वह है अधीनता में उन बातों का प्रत्युत्तर देना जिन्हें आत्मा हमसे कह रहा है। And the Lord and the Spirit and the Lord will guide you and
take care of all those situations you are going through. और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और उन सारी परिस्थितियों में आपकी चिंता करेगा और सहायता करेगा जिनसे आप होकर के गुजर रहे हैं, so that we can be truly called as sons and daughters of God. ताकि हम सचमुच में परमेश्वर के बेटे और बेटी कहला सके। That is God's will for each one of us, dear brothers and sisters, to come to a life of victory, which God intended right at the beginning, and God will bring us there. और यही तो परमेश्वर की लालसा है भाइयों और बहनों, हम सभी के लिए, जिसे परमेश्वर ने शुरुआत से ही चाहत रखी कि हम इस पाप के ऊपर जयवंत जीवन में प्रवेश कर सकें। And I want to end with what Brother Robert was saying before. There is only one thing which can stop us reaching there. और मैं उस बात के साथ समाप्त करना चाहूंगा जिसे भाई रॉबर्ट कह रहे थे कि केवल एक ही वस्तु है जो हमें वहां पे पहुंचने से रोक सकती है। That is being content. I am happy with my condition. I cannot reach there. Unbelief and say that content and unbelief, if we stand against that, God will bring us to that place. अपनी परिस्थिति में ही संतुष्ट रहना और इस बात के ऊपर अविश्वास करना कि मैं ऐसा वहां नहीं पहुंच सकता हूं, तो यदि हम ऐसा करेंगे तो हम कभी भी उस जीवन में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। Yes, dear brothers and sisters, may the Lord really help us that we can reach to that place where the Lord has desired, which is of life and peace, as we read in Romans 8. और प्रिय भाइयों बहनों, हम सचमुच में लालसा करें कि हम उस जीवन में प्रवेश कर सके जो वाकई में शांति का और जीवन और शांति जहां पे पाई जाती है। Yeah, Romans 8:6. Mind set on the Spirit is life and peace. और यहाँ पे लिखा है कि वह मन जो आत्मा के ऊपर लगा रहता है वह जीवन और शांति है। Amen. आमीन।